morning to each and everyone. Again, I welcome you in the interview session, particularly one of the elderly. I think not elderly, you can say it out there, the person having joviality to make the life just of utility, doing certain sort of job in the certain field, you can see. So I just met, I think, this respected lady in one of the function, or you can say it out that she is one of my relative. And during that time, I had made a sort of promise to just meet her. Luckily, I'm with her, and we will be having some sort of interaction about NGO and the general term of life. So she will give her an introduction by herself. Madam, over to you. बताइए कुछ. Okay, I am Sutapa Mukherjee. I belong to Assam, and my husband he was from Bengal. He passed away in this 2020 because of COVID. Yeah. And I am a professional social worker, and my husband he was also a professional social worker, and he was engaged with the Department of Social Work, Delhi University. He was a professor. For 2 times he was the head, and we conducted many studies. Our point of interest was to give time to the society and for upliftment of the society. Yeah. We started this organization in 1977. Prior to that, both of us were in Gandhi Peace Foundation, and we had the basic understanding and philosophy of Gandhian philosophy, and then we started this program. We started with aim was to upliftment of the society and helping the grassroots level organizations to manage themselves. We had to train them for every aspect, from and how to implement the program and what to do, and all this when they are trained, and for fund mobilization and everything we had to we gave them the knowledge. And even just 2 days back, one from Jaunpur, one organization holder, he rang me up and asked about my well-being, and he was so grateful that he used to say, आप लोगों ने ये सिखा के हम लोगों को पैर में खड़ा कर दिया. अभी ये सर्विस हम लोग कम्युनिटी को दे रहे हैं. अभी हमारा यहाँ कम्युनिटी में कोई गरीबी नहीं है, कोई भूखमारी नहीं है, लोग अपना काम कर रहे हैं. And for that upliftment we did it, and this is one type of activities we used to do long back for years, and even we had to give them diplomas for rural development management. And then we had area development program. We started programs in Uttarakhand, UP, Bihar, Bengal, all these states. Presently we are working at not working at Uttarakhand. We have withdrawn. We gave the responsibility to the Uttarakhand people, and they were doing it. And in Bihar we are working presently at Narkatiyaganj district, and we will be working at Sitamarhi also. And in the UP we are doing working at Maharashganj district and Gorakhpur. We are all working for child rights and child protection and skill development of the people, so that they become self-dependent and they depend on themselves and work it or live a decent life. And more important, this thing is we are working in Rajasthan area, that is for prevention of trafficking. We are working in 42 villages, and we started the work at Bharatpur since 2003. After findings of research study we did at GB Road area in Delhi. The study was undertaken by us at the behest of Central Social Welfare Board. And there we found this Natberia community, Kanjas communities where from girls are being trafficked. And now I can proudly say we started with education program and marriage for the eligible girls. In one village the marriage took place after 100 years in a Nat community village. So either girls are getting education, or when they are eligible for marriageable age,
they are getting married and having a decent life. Now in 42 villages, not a single girl is Yeah. being trafficked from those areas. This is our achievement. And we are having a school, we started in 2005. The school was started at the behest of the prostitutes from red light areas. Yeah. For their children, they used to say, our children should have a decent life. Yeah. So that time it was our boarding school. We taken the girls at the age of with bottle feeded girls. Yeah. And now they are quite, I am happy that they are progressive and not, attitude has changed. For attitudinal changes we are working, and for their skill development and other this is, we are working for that. So ma'am, I just interfere you. Actually, our program is to make the person to understand yes. Partial Hindi or partial maybe just Bengali or maybe just English. That will be possible. The another question here is that you started or you are actually operating from Ghaziabad, I mean to say UP to Uttarakhand, Uttarakhand to Rajasthan, Rajasthan to Bihar and Bengal also. Bengal also. The other question here is that in most of the cases, several organizations are there. They are just in operating in Mudikars here. Yes. Despite all the thing, whether the success is actually made or not, I can't say possible. Delhi being capital, capital Delhi is divided into several sections here. Some posh area, some area that is thought to be downtrodden, and the small kid, they are getting the just bad habit. Not to speak of that, they are actually abusing the words, or just actually using the words which are beyond expectation. From where they learn? Is it not the parents? Is it not the society? Now two things are there. As you told, professional social worker. Yes. Another is amateur social worker. Is not here. Yes. Somebody does the thing for the sake of money, or somebody does the thing for the sake of, we can say, the self-satisfaction. Like Yes. that. What about your age now? I see that I think silvery hair, particularly on your head. I am quite old. You remember what is the age? I am 77. 77. Salute to you. In this age, persons actually just confined themselves particularly to the four wall of the home and enjoy, or you can say it about that S. According to one of my relatives, you Jijaji, why don't you just make S? And I simply want to say, what is this S? Do the work, or maybe just go to the hotel. This one, that much like that you can see. Or you told about slum area. Then now I don't think this hutment or is available. Buildings are there in just among the building people. Yes. But out of the building when they come, they are getting the bottle, they are getting the drugs, they are getting everything, and they just make the thing to be utilized in public places. जैसे एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि मैं जो देख रहा हूँ एक पार्क में जाते हैं तो पार्क में जाने का मतलब होता है इट इज पब्लिक प्रॉपर्टी है ना. तो द क्वेश्चन हियर इज दैट लोग आते हैं, दारू को बटल फेंका जाता है, चिकना फेंका जाता है, वहाँ पे ड्रग्स का भी चले जो कह सकते हैं कुछ हिस्सा है वो भी फेंका जाता है. लेकिन लोग हिचकते हैं किसी को कहने के लिए क्योंकि वो मुझे मार देगा. अब यहाँ पे हमारा एक सवाल उठता है, आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर मैं अपनी बात या हम अपनी बात अपने नेता अपने अधिकारी को नहीं रखते हैं तो क्या हम आज़ाद हैं? क्या ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं मानसिक रूप से हम गुलाम हैं? या हो सकता है इसमें कुछ करना चाहिए? क्या लगता है आपको? एनजीओ तो अपने हिसाब से कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वो भी अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे पहुँचना चाहिए, हमें पहुँचना चाहिए, मुझे तो नहीं लगता है ऐसा. जैसे हमने 10 बच्चों को पढ़ा, कहाँ पढ़ते हो जी? सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं. किस क्लास में पढ़ते हो? क्लास 4 में पढ़ते हैं. 4 का स्पेलिंग वो एक ने कहा FOR, किसी ने कहा मुझे नहीं आता है. एक बच्ची छोटी सी थी 4 साल की, माँ बाप को पैसे नहीं इसलिए मैं स्कूल नहीं जाता. या फिर एक से होटल वगैरह में बच्चा अगर पकड़ा जाता है तो वो जो कह सकते हैं चाइल्ड प्रिविलेज जो एक्ट है आपका, चाइल्ड लेबर्स एक्ट, वहाँ तो आप पकड़ लेते हैं. लेकिन वह बच्चा जो कूड़ा बिनता है, जो है ना कह सकते हैं हाँ रैक पीकर से, उसके लिए तो हमने ध्यान नहीं दिया. तो आपको नहीं लगता कि ये जो सिस्टम हमारा है डबल स्टैंडर्ड है, कहीं देखता है छोड़ देता है, कहीं पकड़ लेता है ना? नहीं लगता है? बिल्कुल आपने एकदम सही बात बोला है. अभी जो ग्राम नियोजन के अंदर हमारा काम करने का अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट है. वी आर डायरेक्टली लिंक टू द कम्युनिटी की हर घर में जाते हैं, वहाँ से बच्चा आइडेंटिफाई करते हैं. अभी सालों से हमारा बालवाड़ी सेंटर हम लोगों का चलता है और रेगुलर फॉलोअप एंड एवरी ईयर. तो जब बच्चा वहाँ
प्राइमरी स्कूल में एडमिशन का 3 to 6 इयर्स के बच्चे को यूजुअली हम लोग रखते हैं, और वो लोग जब 6 इयर्स का क्रॉस करके इतना पढ़ लेता है, उन लोगों को गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में हम लोग एडमिशन कराते हैं। और उसके बाद उनके साथ फॉलो अप रहता है, मदर्स के साथ रहता है। हर 15 दिन के एक में मदर्स के साथ मीटिंग होता है। यंग जो गर्ल्स होते हैं वो गर्ल्स लोगों के साथ भी हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम, मेंटल हेल्थ, मेंस्ट्रुअल हेल्थ, और ये सबके साथ ही हम लोग उनके साथ बात करते हैं। हमारा मोबिलाइजर है, हमारा वर्कर है। ऐसे हम लोग गाजियाबाद में 4 स्लम एरिया में काम करते हैं, और सारा रीसेटलमेंट कॉलोनी है। और उन लोगों की माए, बच्चे का माए जो है ज़्यादातर डोमेस्टिक हेल्प या कोई रैक पिकिंग में चला जाता है, ऐसा ही है। माँ घर में बच्चे का नहीं रहते। सुबह बच्चे को रेडी करके हमारा सेंटर में वो लोग छोड़ जाते हैं। बच्चा रहता वहाँ हम लोग बच्चे को थोड़ा ड्राई न्यूट्रिशन और ये सब देते हैं, और बच्चे का इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, ये सारा चीज़ें हम लोग मतलब रेगुलर टोटलिटी में वहाँ से हम लोग बच्चे को करते हैं। और ऊपर से हम लोग गाजियाबाद में जितना गवर्नमेंट स्कूल है, ये कोविड के बाद से और ऑनलाइन स्कूलिंग और ये सब की बाद से बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम हुआ है। और मेंटल हेल्थ इशू को लेके गवर्नमेंट स्कूल की इंस्पेक्टर से हम लोग परमिशन लेते हुए गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में जितना गवर्नमेंट स्कूल है, फ्रॉम 9, 10, 11, 12 की बच्चे के साथ हमारा रेगुलर सेशन होता है ऑन मेंटल हेल्थ। क्योंकि बच्चे को बहुत कुछ कहने का होता है, बच्चा कह नहीं पाता। कहीं ना कहीं मार की बात होती है। हाँ, मार की बात होते हैं। और वो लोग इसमें वो लोग ड्रग्स एंड अदर एब्यूज या सब्सटेंस एब्यूज वो लोग शुरू कर देते हैं। तो हमारा काउंसलर है, सारा कुछ हम लोग ये 2 साल नहीं 3 साल से हम लोग मेंटल हेल्थ का प्रोग्राम गाजियाबाद में कर रहे हैं। और जिस बच्चे का कोई प्रॉब्लम होता है, ये होता, वो हमारे पास आते हैं। अच्छा, काउंसलिंग होता, बीच में मैं आपको रोक रहा हूँ। इधर मैं अरुणाचल गया था फाइनल सेटलमेंट के लिए। कहने का मतलब है कि जो घर है, तो संजोग से मुझे लगा कि उसको छोड़ने के पहले इस एरिया को थोड़ा कवर अप करें। शहर में रहा थोड़ा, मैं बस्ती में घुसा। 3 बच्चे, तीनों भाई, हाथ में कैटेपुल्ट लेकर के चिड़िया मार रहे हैं। हमने कहा भाई क्या बात है, स्कूल जाते हो? तो नहीं, 11 सालों के स्कूल नहीं जाता हूँ। क्या करते हो? हमारे पापा वहाँ गए हैं, वो आएंगे तो स्कूल जाएंगे। वो 11 साल में स्कूल नहीं गए। अच्छा, मम्मी घर में है, वो सोई है। तो आपको नहीं लगता है कि वो बच्चे कभी नहीं जाएंगे? मैंने एक तरह से, हाँ, ये मैंने सुन लीजिए, उसका रीजन है कि पहले उसको माँ बाप काम कर रहा है वहाँ पे खेत पे, वो जब बढ़ेगा तो वो करेगा। अगर वो पढ़ लिख लेगा, उसी तरह दूसरे एरिया में एक लड़का मिला, 9 में पढ़ाई छोड़ दिया। हमने क्यों पढ़ाई छोड़ा? तो आगे पढ़ के क्या करेगा? नौकरी मिलेगा नहीं। हमने कहा जो भी बोलना बोल दो इसको, है ना। मैं सोचता हूँ कि अपनी बात रखो, क्योंकि होता क्या है, जो दिल्ली में बैठा है वो भीतर तो नहीं जाता है ना। कोई भी आदमी एसी कमरे में बैठ के आप पूरे हिंदुस्तान का नक्शा नहीं बना सकते। नहीं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे कुछ भी हो, हर लोगों का अपना अपना ये है। और आप सोचते हो दिल्ली ठीक हो गया सब कुछ, लेकिन दिल्ली भी पूरा कहाँ ठीक है ना। दिल्ली भी पूरा कहाँ ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि हम लंबे चौड़े भाषण देते हैं कि हमको ये करना है, वो करना है, वो करना है, लेकिन कहाँ तक सक्सेसफुल है। और मुझे तो लगता है कि अभी तो कोई अगर आदमी सफल होना चाहता है तो उसके पास जो है वो बिक्री करे। जैसे आपने कहा कि कुछ लड़कियाँ बार में जाती हैं, कुछ जैसे रेड लाइट एरिया में चली गई, और उससे उसका परिवार चलता है, बच्चे भी पढ़ते हैं। अभी हमको किसी आदमी ने कहा था दिल्ली में ही यहाँ पे कि एक लड़की घर से निकलती है, शाम को आती है 40,000 रुपया लेकर के। बाप भी उसका आराम से ले लेती है, ले लेता है, भाई भी ले लेता है, लेकिन पूछते नहीं है कि वो कहाँ से आता है ना। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कौन है नहीं है, ये तो जैसे मान लीजिए अगर बातें बाहर आती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जरूर घटना घटता होगा। Where there is smoke, there must be fire. एक मिनट से, and every result has got some sort of, we can say about that relations with that of occurrence, something like that, है ना। अब यहाँ पे एक जैसे कि मान लीजिए कोई यहाँ पे सीधा सा हिसाब है, हमारा एक फिलोसॉफी है, और एक कहने का मतलब जैसे कि मैं देखता हूँ कि साइन बोर्ड पे लिखा है समाज सेवी। क्या समाज सेवी को भी साइन बोर्ड चाहिए क्या? वह किस तरह का समाज सेवी है? नहीं, एक पोस्टर बना के लिख दिया उसने, जैसे ये समाज सेवी। मैं सोचा एक दिन उस आदमी से मिलता हूँ, उससे भी बात करें, भैया समाज सेवा का जो मानदंड आपका क्या है ना। What is the criteria of being social worker like that? Is it so that you are actually getting some sort of exposure, है ना। तब यहाँ पर जैसे कि मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हमने कहीं पढ़ा था, नेहरू का एक लाइन था, है ना,
Thought without action is abortion, action without thought is a folly. Reconciliation of the two will take you towards the destination. उसके बाद वो भी था, so long as a single mouth is unfed, single body is uncovered, single head is not actually getting roof, we cannot say it about that India is free. So do we really get ourselves to be free? Freedom requires, Englishman we just made it to be really supposed to be driven from India. What about the black Englishman? Same condition is there. Macaulay is not dead. Macaulay went no there, but in the mind of the people still Macaulay is there. Divide and rule. Accordingly you just make the caste. This morning I was simply just actually watching one of the video, and it was told there, a time will be there, a caste will be there. What type of caste? YouTube maker, and maybe best poor, this and that, like that. According to your profession, caste will be there. In the earlier it was so, but now it has got not changed. New level has got. As you tell, बोतल में केवल लेवल बदल गया, शराब तो वही है ना. कल भी जैसे आप कहते हैं, जैसे माने मैं राम से विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन हमारा हिसाब है, राम तो दिल में है, राम और रावण दोनों है. आप जिस हिस्से को करते हो उसमें वो बन जाते हैं. कंस और वो कंस और ये कृष्ण दोनों भी साथ में है. अब यहाँ पे सवाल उठता है, हेवन और हेल की बात करते हैं. दिल और दिमाग ही तो हेवन और हेल है. अब जैसा बनाते हैं बन जाता है. इसको ठीक करेंगे तो ठीक हो जाएगा. और एक हमारा एक छोटा सा और है, मतलब जनरल सोच हमारा है, जो अभी जो मैं जैसे कि आज़ादी के समय में जितने भी लीडर्स थे सब पढ़े लिखे होते थे, उनके भाषण सुनने में अच्छा लगता था, बैरिस्टर थे, जो भी थे. आज मैं ब्लेम नहीं करता हूँ. आज जो होता है लेक्चर वो किसी के ऊपर ब्लेम होता है और उससे कुछ मिलता नहीं है और ये होता है, डिस्ट्रक्शन होता है. तो हमारे ख्याल में कैसा एक आइडिया आया कि जैसे आईएएस में कोई जो आदमी अगर फेल्योर हो जाता है, नहीं कर पाता, वो कोचिंग खोलता है, दूसरा आईएएस बनाता है. क्या ये कोचिंग वाले हमारे पॉलिटिशियन को अच्छा पॉलिटिशियन नहीं बना सकते? हमारे पास एक लिमिटेशन है. कोई भी आदमी अगर सर्विस करता है 60 में रिटायर हो जाता है, उसके लिए क्वालिफिकेशन एक प्यून जो है उसके लिए भी क्लास 8 पास है. तो ये जिसके हाथ में हमने देश का बागडोर दे दिया, वो कैसा होना चाहिए? ये ऐसा नहीं हो सकता कि वह लोग जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हैं उसको सामने आना चाहिए, इंडिपेंडेंट हो या ग्रुप में हो या पार्टी बना करके वो अगर आते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेटर होगा, क्योंकि उसने हंगर भी देखा है, उसने कह सकते हैं फेल्योर को भी चखा है, और वो गरीब तबके से आता है, वो कुछ न कुछ करेगा. जो कह सकते हैं जो पेरेंटल सिचुएशन को लेकर का है, पहले जैसे मान लीजिए कि राजा होता था तो राजा कम से कम तलवार तो भांजता था. पूरी दुनिया में मारपीट हो रही है. कभी आपने सुना कोई नेता मरा है? नहीं. अगर नेता नहीं मरता तो आम आदमी क्यों मरेगा? क्यों मरेगा? चाहे वो सैनिक हो या दूसरा हो, तीसरा हो, क्यों हो, है ना? क्या कहेंगे इस विषय में? ये तो सोच है, राइट टू एक्सप्रेशन है, कोई भी बोल सकता है ना, अपनी बात तो रख ही सकते हैं ना. बिल्कुल. हाँ, इस पर थोड़ा बताइए. तो ज़्यादा हो गया तो इसका कर देंगे. नहीं, मेरे हिसाब से हमारा सोशल वर्क फील्ड में ये सिखाते हैं कुछ जो कोर्सेस है, तो उसमें कुछ फिलोसॉफी है, कुछ प्रिंसिपल्स है. ठीक. और ये सोशल वर्क का जितना है, दे शुड फॉलो द प्रिंसिपल्स. और प्रिंसिपल्स फॉलो करके विथ डिग्निटी यू हैव टू एक्सेप्ट द पर्सन, और उस पर्सन को आप कैसे अपलिफ्ट कर सकते हो, वही उसका तरीका. चाहे वो रिच फैमिली से हो या चाहे वो गरीब तबके के एकदम कम्युनिटी की लोलीएस्ट ऑफ द लो कम्युनिटी का हो, आप उसको भी कैसे अपलिफ्ट करोगे. आप उसका क्या ये है स्किल डेवलपमेंट करके उसको अपने पैर में खड़े होने के लिए आप पूरा उसको सिखा सकते हैं. आप इस तरह से कह सकते हैं, किसी को रोज मछली खिलाने से बढ़िया उसको मछली पकड़ने सिखा दो. हाँ. किसी को 10 रुपये देने से बढ़िया है उसको 10 रुपये कमाना सिखा दो. ये गांधीयन फिलोसफी पहले भी था और आज भी है. हाँ, अच्छा, कुछ लोग इसको फॉलो करते हैं. yes, उसी को बिलीव करते हैं. अभी हमारा कम्युनिटी में आज सालों से हम लोग कंप्यूटर ट्रेनिंग किसको दिया? जो नीडी है, जिसको जरूरत है. फिर एनआईटी के साथ भी हमारा कंप्यूटर ट्रेनिंग चलता था. सारे बच्चे लोग अच्छा पोस्ट में है, काम कर रहे हैं. इवन हमारा भरतपुर स्कूल में भी कंप्यूटर ट्रेनिंग है, बाकी कहीं स्कूलों में नहीं है, ताकि उसको किस हिसाब से आप टोटलिटी में कवर करके ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन इट इज रिक्वायर्ड ना. एक तरफ आप खाली एक ही पिन पॉइंट करेंगे इसका मानसिक विकास हो. मानसिक विकास में नहीं होगा, उसका शरीर भी, इसका शारीरिक ये भी रहना पड़ेगा, मेंटल भी रहना पड़ेगा, एवरीथिंग.
अच्छा, यहाँ पे एक सवाल उठता है, जैसे मान लीजिए कि ढेर सारे बच्चे कुछ करना चाहते हैं, है ना, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं दिखता है। जैसे कल परसों में एक मैकेनिकल इंजीनियर का इंटरव्यू लिया था, हाँ तो उसने वही एनआईटी तो आईआईटी फिर वो कोचिंग के बारे में उन्होंने कहा, देखो ऐसे भी लोग हैं जिसके पास कोचिंग का पैसा ही नहीं है। हाँ उसका दूसरा उपाय है जहाँ फ्री कोचिंग दिया जाता है उसको आप बता सकते हो। तीसरा, जैसे मुंगेर में एक लड़की को हमने देखा, वो इसमें एम्स में क्वालिफाई की थी, तो जब उससे उसका इंटरव्यू आया तो बोला हमने कहीं कोई कोचिंग नहीं लिया, 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर थे उसको सोल्व किया, और जो मेरे समझ में नहीं आता था अपने स्कूल के टीचर से हमने पूछा, तो वो भी कर लेता है। दूसरी बात, हर दिल्ली आने वाला आईएएस नहीं बनता है, हर गांव में रहने वाला बेवकूफ नहीं होता है। हाँ। वो गांव से भी रह के कर लेता है ना, 100% गांव से भी रह के कर लेता है और दिल्ली में आके भी नहीं कर पाता है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे जैसे कि मैं अपने एक डिप्टी कमिश्नर को बोला था कि सर इन बच्चों को जो अरुणाचल प्रदेश में, हाँ। इन बच्चों का बुक भी नहीं दीजिए, कुछ भी नहीं दीजिए, है ना, कोई खाना पीना नहीं, मिड डे मील लेने नहीं दीजिए, एटमॉस्फेयर दे दीजिए अपने आप पढ़ने, हाँ। है ना, लेकिन आप सब कुछ देते हो, एटमॉस्फेयर नहीं देते हो, हाँ। है ना। जैसे नेता, जैसे एक हर आदमी सोचता है कि हमारा जो एरिया सेफ हो, कोई दूसरा आदमी हमारे पास नहीं। नेता लोगों का तो वो पॉलिटिकल मोटिवेशन रहता है ना, अपने एरिया में से जो बच्चा ये करे वो, लेकिन एक्चुअली फील्ड में उन लोगों का वोट बैंक के ऊपर डिपेंड करने का नेता लोगों का वो होता है। एक्चुअल फील्ड में जाके परिस्थिति को देखते हुए क्या कम्युनिटी का नीड है, दे डू नॉट आइडेंटिफाई द नीड। जब तक आप नीड आइडेंटिफाई नहीं करोगे और नीड फुलफिलमेंट के लिए काम नहीं करोगे, कोई भी कम्युनिटी डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम, इट कैन नॉट बी ए सक्सेसफुल प्रोग्राम। अच्छा, एक लास्ट सवाल, जब तक जनता वोट नहीं देती जनता मालिक हो जाती, मालिक रहती है अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी। वोट खत्म, जनता नौकर बन गया, नेता मालिक बन गया, ये तो सिस्टम है। जो पहले आके दरवाजे पे आके हाथ जोड़ते हैं मुझे जिताओ आशीर्वाद, वही कल को उस आदमी को देखना ही नहीं पसंद करता, उसका 5 साल बाद आएगा, 5 साल के बाद लोग सबके सब भूल जाएंगे, है ना। तो मुझे लगता है कि इस देश में एक और रिवॉल्यूशन और कह सकते हैं मूवमेंट चाहिए, जो सड़ी गली परंपरा जो पुराना है, अभी तो लोग शादी करने लगे एक दूसरे में, वो जाति पाति कुछ रहा ही नहीं। जब नहीं रहा तो उसको आप क्यों ढो रहे हो, नहीं इसको खत्म करो ना भाई, है ना। तो खत्म करोगे तो निश्चित कहीं ना कहीं सॉल्यूशन मिलेगा। और जैसे हम एथनिक क्लासेस के देखते हैं तो हिंदुस्तान में तो सभी रहते हैं, मंगोल भी रहते हैं, द्रविड़ भी रहते हैं, आर्यन भी रहते हैं, दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। जब यहाँ लोग सब मिलके, जैसे मान लीजिए किसी भी देश को ले लीजिए, वहाँ का जनता तो लड़ाई नहीं चाहता, वहाँ की जनता पीसफुल रहना चाहता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, चाइना हो, रसिया हो, अमेरिका, जो भी हो। लेकिन ये यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, कौन आगे बढ़ता है, मरता कौन है, परेशान कौन होता है, जो लोग घर छोड़ते हैं, जिनका परिवार मर जाता है, छोटा बच्चा गुजर हो जाता है, उनसे जाके पूछिए स्थिति क्या होती है। आप तो आराम से रहते हो, आराम गाह में रहते हो, चाहे कहीं का, है ना। आप पृथ्वी को परिवार बनाना चाहते हो, एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन नहीं संभलता है, एक छोटा सा कह सकते हैं परिवार नहीं संभलता है। तो ये हम जरूरत से ज्यादा नहीं सोच रहे, सोच तो रहे हम लोग, बात करते हैं काम नहीं करते हैं। यूनिवर्सल ब्रदरहुड के लिए, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम, हाँ, लेकिन टुवर्ड्स दैट वी डू नॉट वर्क। हम लोगों में भी मैं तू मैं, जब तक ये तू मैं खत्म नहीं होगा ना समाज में, तब तक इक्वलिटी भी नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम भी नहीं आएगा, और वही हैव्स एंड हैव नॉट्स का जो ये था वही चलता रहेगा। चलिए, आपसे लंबी बात हुई, अच्छा लगा, मुझे तो उम्मीद भी नहीं था कि इस उम्र में यहाँ। अच्छा, दूसरी बात, नया एक हॉबी हमारी, अलग अलग लोगों से मिलो, बातचीत करो, है ना, किससे दोस्त सब निकलेगा, किसका लाइफ बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए इस एरिया में कभी आप अगर आप एक्सटेंशन करना चाहते हैं तो उत्तम नगर इस एरिया में करिए, मुझे लगता है वहाँ जो ये ड्रगिस्ट लोग संभल जाएंगे, वो अंगली माल नहीं है, मुझे लगता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि मैंने 4 स्कूल में काम किया, एक अच्छा स्कूल मुझे नहीं मिला, लेकिन अभी वो स्कूल एकदम बढ़िया हो गया, है ना, झेलना पड़ा, ऐसे नहीं तुरंत नहीं होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो को वेट करूंगा, लेकिन इसके पहले अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो कोई नंबर दे सकेंगे आप, इसमें नंबर बोल दीजिए थोड़ा सा। मैं ज्यादा ना पब्लिक इसमें नहीं, पब्लिक कोई बात नहीं है, कोई फोन करे तो फोन कर सकते हैं मेरे को। नंबर बता दीजिए, कुछ नहीं। हमको लगता है इस एरिया में कम लोग इंटरेस्ट हैं, जब तक आप आगे नहीं बढ़ के मोटिवेट नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो 9818551040। एक बार और बोल दीजिए, 9818551040। This much, thank you. And I do think it was that our conversation, interaction, interview is not political, it is social and ethical.
And as you assume and as you just think, it is your opinion, it is your outlook. This much. Thank you very much.